ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਸੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خاکسار کا نام آفاق احمد باجوہ ہے۔ حال مقیم پنی برگ جرمنی میں ہوں۔ آبائی گاؤں تیتی جنوبی سرگودا۔ میں اپنے آبا کا کچھ ذکر کروں گا اور اس بات کا ذکر کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے احمدیت کا نفوذ ہمارے گھرانے میں کیا، اور جس شخص نے احمدیت میں داخل ہوئے پہلے ان کا نام محمد عالم باجوہ، وہ مقیم تھے تیتی جنوبی سرگودا کے۔ وہ داخل ہوئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کی احمدیت میں داخل ہونے کی، اس کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو محمد عالم باجوہ میں نے پہلے جیسے ذکر کیا ہے، وہ تیتی جنوبی سرگودا کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ تیتی جنوبی ایک گاؤں ہے، لوگ زمیندار ہیں موسٹلی، اور ان کی ذات باجوہ ہے، اکثریت باجوہ ہے وہاں پہ۔ آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہیں، مل کے رہتے ہیں، مذہبی وہ لوگ ہیں زیادہ تر۔ میرے جو پردادا تھے یعنی محمد عالم باجوہ کے والد، وہ بہت مذہبی تھے، اور دم درود پہ بھی وہ ان کا یقین تھا، بلکہ وہ خود بھی کرتے تھے دم، اور لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنی تکلیفیں دور کرانے کے لیے، لیکن وہ احمدیت کے خلاف تھے۔ میرے دادا جو تھے وہ ان کی کچھ طبی طور پہ ان میں شرافت تھی، اور وہ لوگوں کے کام بہت آتے تھے، خاص طور پہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو غریب ہیں ان کی مدد بہت کرتے تھے۔ زمیندار تو بہت بڑے نہیں تھے، ایک اوسط درجے کے زمیندار تھے، لیکن رہنا سہنا ان کا اچھا تھا۔ ان کے 4 بھائی تھے، یہ سب سے بڑے تھے، اور ان کی سارے عزت کرتے تھے بھائی۔ ان کے ایک کزن تھے شیر محمد، جو ظہور احمد باجوہ صاحب کے والد تھے۔ وہ ان کے فرسٹ کزن تھے، اور اس سے بڑھ کے ان کے بہت دوست تھے، تو یہ آپس میں بیٹھتے تھے۔ اس گاؤں کا جو زمیندار ہیں ان کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ گاؤں کے چوک میں جب فارغ ہوتے تھے گپ شپ کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک تبدیلی یہ آئی کہ ایک شخص باہر سے کہیں سے آیا، اس گاؤں میں آباد ہوا، وہ احمدی تھا۔ اس نے اپنی ایک کریانے کی دکان چوک میں کھولی، وہاں چونکہ یہ چودھری بیٹھتے تھے تو وہ ان کو آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا اور دین کی باتیں کرتا تھا۔ ان کی باتیں سنتے تھے، کچھ تو نہیں تھے سنتے زیادہ، لیکن یہ سنتے تھے، یہ بھی سنتے تھے۔ پھر ان کے کزن شیر علی بھی سنتے تھے۔ چودھری شیر علی نے بہت زیادہ دلچسپی لینی شروع کی، اور انہوں نے سوال پوچھنے شروع کیے، چیزیں پوچھنی شروع کی۔ پھر
रबुआ से भी ये कुछ लोग आए यहाँ पे, तो इस तरह उन्होंने बैत कर ली। और जो ज़हुर अहमद बाजवा साहब के वालिद ने बैत कर ली, तो मेरे दादा ने बैत नहीं की। वो लगता है कि माइल तो हो चुके थे, लेकिन कहते थे कि अभी शरह सदर नहीं। तो वो शेर अली इनको इनके कज़न कहते थे कि ये सच्चा रास्ता है, आप आ जाओ, वो इनको मोटिवेट करते थे। ये यही कहते थे कि अभी शरह सदर नहीं। तो एक दिन इनको ख्वाब आई कि इस तरह को बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े मुतअस्सर होते हैं ख्वाब में उनसे। वो उनकी तरफ ये जा उनकी तरफ मुतवज्जो होके खड़े हो जाते हैं बड़े एहतराम से। तो वो इनको कहते हैं कि मोहम्मद आलम, ये मैं तुम्हें कुछ देने लगा हूँ, आज झोली करो। तो ये अपनी कमीज़ की जो झोली आगे करते हैं, तो 5 आम इनको देते हैं, बड़े खूबसूरत आम। तो वो कहती हैं कि मैं आम लेके तो लौटने लगा तो मेरा एक आम गिर गया नीचे, तो उसको गंदा हो गया, मिट्टी लग गई, परेशान हो गया मैं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि कुछ नहीं हुआ इसको, ये बिल्कुल ठीक है, साफ करो और ले लो, इसको उठा लो। वो कहते हैं कि मैं ये लेके चला गया। मैंने जाके तो जो कज़न थे मेरे, उनसे मैंने कहा कि मुझे अपने खलीफा की तस्वीर दिखाओ। तो उन्होंने तस्वीर देखी, तो उन्होंने कहा यही बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि मैं बैत करने के लिए तैयार, बैत करना चाहता। घर में उन्हें जाके अपनी अहलिया से बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चे अभी छोटे थे, बहुत ज़्यादा बलूगत में नहीं थे वो, इसलिए अहलिया को भी कहा, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बैत करें। तो उसकी ताबीर वो बाद में खुद ही की उन्होंने। वो कहते हैं कि वो जो आम मेरा गिरा था, वो मुझे डर था मेरी अहलिया का कि वो कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो जब मैं बैठता था, बातें ये सुनता था, तो मैं घर में आके बातें करता था वो। तो वो बहुत मुखालिफ थी कि तू किस तरफ लग गया है। हुँ, तो पीरी मुरीदी की थी, दाम दरूद की, इस तरह के मिजाज की। तो उनको ये था कि वो नहीं मेरे साथ चलेगी। तो लेकिन उन्होंने कोई इनकार नहीं किया और फ़ौरन वो मेरे साथ बैत कर ली। जब वो कहते हैं कि मेरी बैत का मैंने ज़िक्र किया, इज़हार कर दिया जब बैत करने के बाद, ये 30s की दहाई थी, जिसमें इन्होंने बैत की थी और खलीफा सानी थे, हज़रत खलीफातुल मसीह सानी, उनके हाथ पे इन्होंने बैत की थी और ख्वाब में भी इन्होंने उन्हें ही देखा था। तो आम भी उन्होंने ही दिए थे इनको। जब इन्होंने बैत कर ली, पता चल गया, इन्होंने बता दिया, तो भाई इनके बहुत मुखालिफ हो गए जो इनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। वालिद को लोगों ने कहा कि चौधरी तेरे घर च मरज़इयां ने सन ला दित्ती, तेरा बड़ा बेटा मरज़ई हो गया। ते उनको भड़काया बड़ा। उन्होंने गुस्से में आके, तो उन्होंने चूँकि इनको अपने दूसरे बेटों से बड़े थे, अलहदा करके अलहदा ज़मीन एक हिस्सा दी हुई थी, तो ये उसको काश्त करते थे। तो उन्होंने गुस्से में जाके, इनका नौकर उधर हल चला रहा था, उसको कहा कि रुक जाओ इधर, बंद करो हल। अब जाके उसको कह दो कि मिर्ज़े की ज़मीनें जाके, अब मिर्ज़े दी ज़मीनें वहाँ जाके, इत्थों तेनू कुछ नहीं मिलना, निकल जा इत्थों।
अब वो उन्होंने कहा जाके बताया, तो उन्होंने कहा कि जो वालिद साहब ने कहा वैसा ही करो। वो एक दिन उसी ज़मीन पे थे, तो भाई गुस्से में आए, उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया। वहाँ लोग जो थे इर्द-गिर्द साथ, वो तो मुलाज़िम थे या मुज़ेरे थे, उन्होंने फिर छुड़ाया इन्हें आपस। उसके बाद फिर ये परेशान भी थे क्योंकि इनको इनका माश तो ज़राइत से था, काश्त करते थे, वही इनका माश था। और पहला हमला भी इन पे यही हुआ कि वालिद ने माश बंद कर दिया। परेशान थे कि अब क्या होगा? फिर ये कहते हैं कि मैंने दुआ की, अल्लाह तू सबबुल असबाब है। वो कहते हैं कि मैं परेशान बैठा था, तो एक ज़मींदार आया, वो कहता है कि मैं ठेके पे ज़मीन देना चाहता था, तो आपके पास ज़मीन क्यों नहीं है, तो आप ही ले लो। वो कहते हैं कि मैंने उसे ठेके पे ज़मीन ले ली और काश्त शुरू कर दी। कहते हैं कि मैं खुद भी हैरान था कि कैसे फ़ज़ल खुदा के शुरू हुए कि वो ज़मींदार जो मालिक था, उसमें इतनी ज़्यादा फ़सल और इजनास हुई कि वो कहने लगा कि इस ज़मीन ने कभी मुझे तो इतनी फ़सल अजनास दी ही नहीं, तो ये कैसे तुमने की? तो वो कहते हैं कि मैंने कहा खुदा का फ़ज़ल है, वही है जो मुझे मिल रहा है। इस तरह इनको अ, इनके माली हालात बेहतर होते गए, ये और ठेके पे ज़मीनें लेते गए। फिर खुदा का फ़ज़ल इतना हुआ कि वो कहते हैं कि उस गाँव के सबसे बड़े काश्तकार ये बन गए, ठेके पे ज़मीन ले लेके। तो इनके फिर अ, इन्होंने कारोबार भी शुरू कर दिया, गंदम अपनी भी बहुत थी, फिर लोगों से भी लेते, फिर आगे सप्लाई करते, इसलिए माली इनकी हालत बहुत बेहतर हो गई। इनके वालिद साहब हज करना चाहते थे, उनके भाई उनको हज नहीं करवा सके, तो उनकी बड़ी ख़ास कोशिश करते रहे, 1 साल गुज़र गया। तो फिर इनको पता लगा, इन्होंने इनसे बात नहीं थे करते, तो इन्होंने किसी के हाथ ये पैगाम भेजा कि मेरे पैसे से अगर आपने हज करना है तो मैं करवाता। तो उन्होंने कहा करवा दो। तो फिर इन्होंने अपने बाप का हज करवाया। ये भी एक निशान था अल्लाह ताला ने वही कि मिर्ज़े की ज़मीन वाहेगा हुण तुम। तो मिर्ज़े दी ज़मीना चों ही पैसा लैके ते उन्हां हज करवाया। जमात में आते ही सदर बन गए और लंबा अरसा सदर रहे। वहाँ पे उस सफ़र की मुश्किलात बड़ी थीं। उस गाँव का बड़ी सड़क से जिसमें बसें चलती थीं और शहरों में लोग जाते थे, वहाँ का कनेक्शन इस तरह था कि टांगे थे गाँव में, वो चंद एक होते थे, वो सुबह जाते थे लेके सवारियाँ और एक दफ़ा एक चक्कर लगाते थे तो वापस आ जाते थे। वो महदूद थे, लोग पहले ही उनको बुक कर लेते थे, कभी मिलते थे, कभी नहीं थे मिलते, तो इस तरह का था सिलसिला। तो जलसे पे इन्होंने इनके माली हालात बेहतर थे, तो खुदा की राह में खर्च करने का इनका बड़ा मज़ाज था कि खुदा के पैसे हैं, कहते थे मैं उसकी राह में खर्च करूँ। तो उन्होंने बस रिज़र्व कर लेते थे और वो आके तो गाँव के चौक में खड़ी हो जाती थी, तो वहाँ पे वो बस वाला वो आवाज़ें लगाता था, वो आ जाओ जल्दी आओ रवा जिसने जाना है। गाँव में ये आवाज़ें लग रही होती थी, रवा जिसने जाना है आ जाओ, तैयार हो। उसमें फिर बहुत सारे वो अहमदी तो आ ही जाते थे, तो फिर गैर अहमदी भी कई आ जाते थे और वो आके उनको किसी को शौक होता था, चले शहर फिरेंगे जाके, तो कुछ जलसा देखते भी थे जाके, बैठते थे, सुनते थे और एक तो वो थे बड़े शौकीन मिजाज थे, मुखालिफ थे बड़े अहमदियों के।
तो किसी ने कहा कि तुम जलसे पे चले जाते हो हर साल, तो तुम आंदा नहीं जलसा देखण ते नहीं जांदा, मैं साकब की नज़म सुन जा। वो खुद भी थोड़े से गाते-गूते थे, इस तरह के थे वो। फिर जमात ने इनकी ज़िम्मेदारी मरकज़ ने ये भी लगाई थी कि गंदम सप्लाई जलसे के लिए आपने भी करनी है और जानवर गोश्त के लिए वो भी आपने मुहैया करने। वहाँ पे हमारे गाँव से रबुआ 19 से 20 किलोमीटर का फ़ासला था और ये और कोई दूसरे तो असबाब नहीं थे, गधों के ऊपर ही सामान जाता था। तो ये उसके ऊपर बोरों के ऊपर वो लाइन गधों की लगी होती थी और वो गंदम लेके रबुआ जा रहे होते। 1962 या 63 में इनका सिंध जाना हो गया। वो इस तरह हुआ कि सदर अयूब था उस वक़्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट वो। उसने एक प्रोग्राम बनाया कि सिंध की गैर आबाद ज़मीनों को आबाद किया जाए। तो दूर-दराज़ ज़मीनों में उसने पंजाब से लोगों को ज़मीनें अलॉट की कि वहाँ जाएँ। तो बहुत सारे पंजाब से लोग गए सिंध में। तो दूर-दराज़ इलाका था, मेरे दादा भी गए और उस वक़्त तो उधर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई आबादियाँ इस तरह की तो थी नहीं, तो ये ज़मीनों के ऊपर ही अपने घर बना के रहते थे और उधर ही जो काम करने वाले थे, वो सारे उधर घर बनाते थे और वो एक छोटा-सा गाँव बन जाता था और उसको गोठ कहते थे। तो ये गोठों में रहते थे, दूर-दूर थे अहमदी। इनकी मुलाकात इस तरह पे होती थी कि करीब 3-4 किलोमीटर के फासले पे एक शहर था जिसका नाम गुलारची था। ये बाद में तहसील बना। ये सारे उधर आते थे अपना सौदा सलफ लेने के लिए। सबका ही आना होता था, क्योंकि अपनी गोठों में तो कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से चीज़ें खरीदते थे, घरों में लेके जाते थे और फिर उसी पे वो अपना गुज़ारा करते थे। तो वहाँ पे इनकी मुलाकात होती थी, परेशान थे कि क्या करें? दूर-दूर रहते, कहीं पे इकट्ठे अगर होते भी हैं तो इस तरह ही बैठ के बात करके चले जाते हैं। कोई ऐसी जगह हो जैसे हम इकट्ठे हों, नमाज़ पढ़ें, चीज़ें करें, वो सारा कुछ करें। उस वक़्त मेरे दादा को माली वुसअत दी हुई थी अल्लाह ताला ने, तो इनको खर्च भी खुदा की राह में वो कहते थे खुदा का ही दिया हुआ है, उसी के राह में खर्च करो। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम मस्जिद की जगह खरीदें, तो मैं जगह खरीद लेता हूँ। तो उसको उन्होंने वो जगह खरीदी और मस्जिद के लिए वो उन्होंने उसमें इन्होंने छोटे-मोटे कुछ चीज़ें भी मस्जिद पूरी तो ना बनाई, लेकिन घर के वहाँ इन्होंने नमाज़ें शुरू कर दी। वहाँ पे इनका ये था कम से कम जुमा तो पढ़े, फासले बड़े हैं, रोज़ नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जुमा तो ज़रूर पढ़े। फिर ये जुमा पढ़ने शुरू हो गए, वहाँ पे हर जुमा होता था और ये वहाँ पे 10 साल सदर जमात रहे। फिर ये वापस पंजाब आ गए सिंध से और बूढ़े भी हो चुके थे, उम्र भी काफ़ी थी हो चुकी। तो एक दफ़ा इन्होंने उधर बैठे हुए थे मेरे बड़े भाई को, वो इनके पास उस वक़्त कमज़ोर हो गए थे काफ़ी, तो बेड पे लेटे थे, ते कहते थे कि पुत्तर सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहोगे ਤੇ सत्ता ही खैर। मेरे वालिद साहब चूँकि उस वक़्त एक स स्कीम होती थी कि अंग्रेज़ के वक़्त में आबाद करते थे
ज़मीनों को सरगोदा आबाद उन्होंने किया था, करना चाहते थे। उनको फ़ौजें उनकी घोड़ों पे होती थी उस वक़्त, तो घोड़ों की बड़ी कदर करते थे, घोड़े पालते भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोग जिनकी ज़मीनें सियालकोट में हमारे बाओजदाद थे बुनियादी तौर पे, उनकी ज़मीनें जिनकी महदूद हैं, उनको हम अ, उधर देते हैं, आ जाएँ। तो ये हमारे जो दादा थे, वो वहाँ से माइग्रेट होके आए, इधर जिस जगह मैं 33 जनूबी सरगोदा का ज़िक्र किया। उस वक़्त अंग्रेज़ का एक असूल था कि ज़मीन का यूनिट टूटेगा नहीं, ये उसको मिलेगी जो सबसे बड़ा है, वो फिर सब छोटों का वही कफ़ील होगा, लेकिन नाम उसी के होगी। तो मेरे दादा बड़े थे और उनके आगे बड़े जो थे वो मेरे वालिद थे। क्योंकि उस वक़्त ज़मीनें आबाद करनी बहुत मेहनत दरकार थी। फिर उस वक़्त वो अंग्रेज़ का घोड़ा भी या घोड़े जो भी हो, उनकी खिदमत भी करनी थी। उनको भी करते थे, पालते थे कि उनके मियार का तगड़ा करना था। तो ये चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। वालिद साहब जो मेरे हैं वो बूढ़े हो रहे हैं काफ़ी। ये नौजवान थे उस वक़्त, मेरे दादा। तो वालिद साहब उस वक़्त अ, 8वीं में हाई स्कूल में जा रहे थे। हुँ, उन्होंने इनको कि कहा कि छोड़ दो पढ़ाई को। 1933 में अ, ये चूँकि कानून टूट चुका था, ये जो अ, विरासत का है कि बड़े बेटे के नाम हो सकती है, बल्कि विरासत का कानून लागू हो गया कि वो सबको वही मिलेगी जो उसका हिस्सा है। और माली इनका कुर्बानी इस तरह भी है कि तहरीक-ए-जदीद में इनका नाम अ, दफ्तर अव्वल में आता है, उसमें भी ये शामिल थे। फिर उन्होंने जब तहरीक खलीफा सानी ने की, ईवान महमूद की, तो उन्होंने उसमें ख़ासी रकम अपनी तरफ से अदा की। मेरे वालिद साहब का नाम था मुमताज़ अहमद बाजवा और मेरे चचा खुर्शीद अहमद बाजवा थे। खुर्शीद अहमद बाजवा अ, जिस स्कूल में हाई स्कूल में हम पढ़े हैं उसका नाम साथ एक गाँव था, हमारा 33 जनूबी था, वो 34 जनूबी था और वो कोई 2 किलोमीटर के करीब दूर था हमसे। तो वहाँ के ये नायब हेडमास्टर थे स्कूल के। उनके जो हेडमास्टर थे, वो भी ज़हुर अहमद बाजवा साहब के भाई थे, बशीर अहमद। तो ये अ, जो ब हेडमास्टर थे, वो भी अहमदी और जो नायब हेडमास्टर थे, वो भी अहमदी उस स्कूल के। तो हम वहीं से पढ़े थे। मेरे वालिद साहब ने हमें फिर माली कमी नहीं आने दी पढ़ाई में जो हमें थी, वो पढ़ते रहे, वो करते थे। अ, फिर इसी तरह पढ़ाई में फिर पढ़े मेरे भाई ने वो डॉक्टर बने, उसने उनकी अहलिया भी डॉक्टर थी और वो खलीफा सालिस ने फिर उनको अ युगंडा में उम, वक़्फ़ के लिए भेजा। आर्ज़ी वक़्फ़ था 3 साल का, लेकिन ये कुछ ज़्यादा टाइम उधर इनका हो गया, 50 साढ़े 4 साल तक फिर उधर सर्विस ये करते रहे। वो वहाँ का जो वाक़या सुनाते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि युगांडा का कैपिटल कंपाला था। कंपाला से काफ़ी फ़ासले पे एक दूर-दराज़ जगह छोटी-सी पे अ, एक जगह थी जहाँ पे
उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप शुरू करें। वहाँ एक कमरा था, पूरे असबाब नहीं थे, तो वहाँ से मेडिकल का शुरू करना था। तो वो कहते हैं कि वहाँ शुरू किया। वहाँ पे क्रिश्चियन पहले ही क्लिनिक एक पूरा मौजूद था जो कि बहुत मशहूर था उधर, और सारे उधर जाते थे। तो कहता है कि हमने शुरू किया, तो लोगों का शुरू में तो ऐसा कोई रुझान नहीं था। कोई एक आध मरीज़ आने शुरू हुए, और जब आए तो उनका अ, सेहत से अल्लाह ताला उनको सेहत देने लग पड़ा। इलाज शुरू हो गया, बरकत पड़ गई इलाज में, और वो लोग आने शुरू हुए, जाके बताते थे। लोग इधर आने लग पड़े, और वो फिर कहते हैं कि इतनी लाइनें लगी, तो अल्लाह ताला ने माली वुसअत भी दे दी कि पैसे हो गए इकट्ठे। जमात ने फैसला किया कि हॉस्पिटल बना दें। 9 एकड़ ज़मीन वहाँ पे खरीदी, और वो कहते हैं कि उस वक़्त उसको जब ज़मीन को तैयार कर रहे थे, हॉस्पिटल के लिए लेवल कर रहे थे, तो मुझे वो आया अपने परदादा का, जो मेरे दादा को कहा था उन्होंने कि ज़मीन मिर्ज़े की ज़मीन वाहो। तो उन्होंने कहा कि आज मैं मिर्ज़े की ज़मीन ही वाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी वालदा का था कि पढ़ाई की उस उनको भी बहुत ज़्यादा था। कहते थे कि ये पढ़े, और वो तरबियत ही करती थी बड़ी खुश, तो खुद भी बहुत नेक ख़ातून थी। 30 साल वो सदर रहीं हमारे गाँव की। तो उनके दौर में छोटी आपा भी और बहुत सारी ओहदेदार मरकज़ से रबवा से उनके दौर में आईं हमारे गाँव में, उन्होंने विज़िट किया। अ, वो बड़ी कोशिश करती थी, उनका यही था कि पढ़ाई करो और दीन की खिदमत कर, दीन सीखो, आगे बढ़ो, नमाज़ें पढ़ो। और वो ये बात का तो होता था कि हम सोते रहते थे कि नींद आई है, खेलते थे और रहते। वो इतना गुस्सा करती थी सुबह के, उठो नमाज़ पढ़ो, कि बाज़ औक़ात उनको फिर चैन नहीं आता था, काम नहीं। वो गुस्से में बाज़ औक़ात फिर वो वो ठुड्डे मारती थी हमारी चारपाई के कि उठ जाओ। और उन्होंने हमें नमाज़ की तरफ हमारा रुझान बहुत किया। उनके वालिद का भी एक वाक़या बड़ा ईमान अफ़रोज़ है कि उन्होंने बैत कैसे की। उनके वालिद सियालकोट में तलवंडी इनायत खां, वो पसरूर एक तहसील है उसका, एक गाँव है, उसमें उसके रहायशी थे। तो उनके पास वहाँ पे जो ज़मीन थी उसके ऊपर वो उनका एक डाची, उन्होंने ऊँट रखते थे, तो एक डाची थी उनकी, तो उसको बड़े लंबे अरसे से थी, काम सारा उससे लेते थे, करते थे, कास्ट में भी और इधर भी। तो उनका नाम पड़ा हुआ था डाची वाले। अब उन ज़िमींदारों के गाँव में नज़दीक-नज़दीक गाँव थे, और लोग वो ज़िमींदार जब फ़ारग होते थे, तो बड़े दोस्त थे, आपस में बैठते थे इकट्ठे, बातें करते थे। उन दिनों ये बड़ा मौलवी चर्चा कर रहे थे, बड़ी बहसें हो रही थी कि मेहदी ने कब आया है, नहीं आया है, बहुत अ, था चर्चा। ये भी आपस में बैठते थे, तो एक दिन बैठे थे तो इसी बात पे इनकी बातें शुरू हो गई। उनमें एक देहात का नंबरदार था, वो एमडी था, वो भी बैठा हुआ था। तो वो बातें कर रहे थे कि अभी मेहदी नहीं आया, क्योंकि वो निशान ही नहीं पूरे हुए। सारे उस पे एग्री थे। तो वो जो एमडी था उन्होंने कहा कि नहीं, मेहदी तो आ चुके हैं। उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्हें वो निशानी जो भी उन्होंने उस वक़्त बताया उनको, तो उन्होंने कहा हमने मान लिया। मैं उनको मान के ही एमडी हुँ, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे नाना ने कहा कि उसकी निशानियों में ये बताते हैं कि वो ऊँटनियाँ बेकार हो जाएँगी। मेरी तो सेहत सलामत है। ऊँटनी उसी पे काम करता हूँ,
वो जाती है, इतना लंबा सफ़र करता हूँ, कोई मसला नहीं, इसलिए अभी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि उसके बाद कुछ महीना बाद ही ग़ालिबन वो उनकी ज़मीन सरगोदा में भी थी। सियालकोट से वो उसी को पे जाते थे, ऊँटनी पे, और सामान भी उसी तरह करते थे। रास्ते में पिंडी भटिया के करीब वो ऊँटनी गिरी और उसकी टाँगें टूट गई और वो उठी नहीं फिर। तो ये वापस आ गए, आके सोचते रहे कि क्या यही निशान है? ये खुदा ने मुझे दिखा दिया। इसी बात का मैंने माँगा था कि मुझे ये निशान चाहिए। तो वो कहते हैं कि फिर वो गए उस अहमदी के पास। वो कहते हैं कि कैसे हम करें? मतलब मैंने बैत करनी है, मुझे तरीका उन्होंने कहा मैंने अहमदी होना है, तरीका क्या है अहमदी होने का? तो वो कहते हैं कि आप तो कहते थे कि मुझे निशानी नहीं पूरी हुई। मैं कहा अल्लाह ताला ने मुझे निशानी दिखा दी। अब मैंने बैत करनी है। मुझे वो था। उन्होंने इस तरह बैत कर ली। 74 में हालात खराब होने से पहले मैं उधर ही पढ़ता था, टीआई कॉलेज में रबुआ में। तो उस वक़्त हम हमें बुलाते थे, तो हम पहरा देते थे रब्बा के इर्द-गिर्द रूटीन में। तो लेकिन जब 74 के हालात खराब हुए, उस वक़्त हम छुट्टियों में जा चुके थे अपने गाँव में वापस। हमारी वालिदा चूँकि हमें हमेशा रोकती थी, ना लड़ाइयों में पड़ना है, कोई से मजलिस में नहीं बैठना, तो वो हर वक़्त डराती रहती थी, मसाइल है, ये है, पढ़ाई करो और खुदा को याद करो बस और कुछ नहीं। तो फिर वो जैसे ही गाँव के इंतखाबात थे, वो गाँव में बल्दियाती इंतखाब ये वो, तो ये करते थे कि अ, हमें भेज देते थे बाहर कि इसमें दाखिल ना शामिल ना हों। तो इस तरह ये हुआ कि 74 के हालात ख़राब हुए तो अ, मस्जिद में जमात में ऐलान किया कि हज़ूर का मैसेज आया है कि देहात से हमें खुदाम चाहिए जो तहमद और कुर्ते और पगड़ी लेके आए और खिदमत के लिए आ जाएँ। उनको इन हालात में उन्होंने ड्यूटियाँ देनी हैं। अब मुझे ये मैसेज, हम तो अभी मस्जिद में ही थे, तो कोई पहले चला गया होगा घर, और मैं घरों में ये मैसेज पहुँच चुका था। मुझे फ़िक्र ये थी कि मैंने उन्हें कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी वालिदा से पहले पूछना है। तो मैं गया तो मुझे डर था कि वो मुझे इजाज़त नहीं देंगे, कन्विंस करना पड़ेगा उनको। तो वो कहती हैं कि वो बैग मेरा तैयार करके पहले ही वो बैठी हुई थी। तो कहती थी ये लो बैग और जाओ। तो मैंने कहा कि ये आज क्या हो गया है? आप तो हमें किसी तरफ जाने नहीं देती थी, लड़ने नहीं देती थी, शामिल नहीं तो होने देती थी, और आपको ये था कि कोई फ़ायदा नहीं। तो आप तो खतरों से रोकती थी, और ये तो खतरा है, उधर जाना है। उसने कहा कि अ, खुदा के खलीफा ने बुलाया है, खुदा खुद हिफाज़त करे। वहाँ बहुत जगह पे अलग भेजा, गुजरांवाला के जो हालात ख़राब हुए उसमें गए, फिर सरगोदा में गए, फिर सिंध भी गए, और मैं साहिवाल में गए। बहुत सारी जगह पे अ, हमें जाना पड़ा। वहाँ किसी को जमात की तरफ से वो उनको, चूँकि उनको तो ब्लॉक कर दिया हुआ था लोगों ने, वो बाहर जा नहीं सकते थे। उनको फिर माली उस प कोई अ, कोई उनको पैसे वग़ैरह पहुँचाने होते थे, कभी कुछ खबरें लानी होती थी, कुछ इस तरह का वो हमारी ज़िम्मेदारी थी ला के। तो 2-2 का उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था। मैं था और मेरा एक कज़न था, वो अ, निसार अहमद बाजवा, वो था। हम दोनों जाते थे। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं जो जिन
जो ईमान अफ़रोज़ है कि किस तरह अल्लाह ताला बचाता रहा, किस तरह हम ये काम करते रहे और उसकी एक तस्दीक यहाँ से मिलती है कि जब ये ख़त्म हो गए और हालात भी बेहतर हुए तो हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस के साथ हमारी एक तस्वीर हुई, फ़ोटो हम के साथ। तो उन्होंने कहा कि खुदा का फ़ज़ल ये देखो कि मैंने जलती आग में आपको भेजा और आपको ख़राश तक नहीं आई। मैं पाकिस्तान से जर्मनी आ गया। जर्मनी में मैं जब आया तो बर्लिन में मैं आया। मैं शनासा नहीं था ज़्यादा, नया था, लोग ज़्यादा मुझे पहचानते नहीं थे, मैं भी उनके साथ थोड़ी-सी अलग-सलग थी। मैं एक दिन मुझे ख़्वाब आती है कि मेरे दादा चारपाई पे लेटे हुए हैं, मैं उनके पास बैठ जाता हूँ और मुझे वो कहते हैं कि आफ़ाक बड़े गुस्से से कहते हैं कि आफ़ाक अ, ऐसा क्यों किया है? मेरे मैं डर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या हुआ है? कहता है कि मरकज़ से मस्जिद की जगह के लिए लोग आए थे, उनको खाली हाथ आप लोगों ने वहाँ लौटा दिए। मैं उन्हें कहता हूँ कि दादाजी मुझे दादाजी कहते थे वो। मैं कहा दादाजी मुझे पता नहीं, मैं आमला मेंबर्स को पता होगा, मैं उनसे पूछ के आपको बताऊँ। तो अब ये ख़्वाब आई, मैंने इसको ऐसे ही समझा कि जैसे उस वक़्त चूँकि बस्ते बनाने की, जगह खरीदने की बातें होती थी, तो मेरे ज़हन में आ गई तो ख़्वाब में चली गई। मैंने इसको इतना वो अहम नहीं समझा। खलीफ़ा राबे के वक़्त में उसी वक़्त मैंने एक ख़त लिखा, मुझे एक ख़्वाब आई थी कि ख़्वाब ये आई थी कि मैं बल्लन मस्जिद की बुनियाद रख रहा हूँ, जमात के साथ मिलके। मुझे उस वक़्त इसकी कोई वो नहीं थी, एक ख़ास वो थी। मैंने हज़ूर को लिखा हज़रत ख़िदमत मसीह राबे को, मैंने लिखा कि हज़ूर मुझे ये ख़्वाब आई है, दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सआदत मुझे नसीब करे। हैं? ये सआदत मुझे नसीब कर दे। तो वो अब ये लिखा मैं इस बल्लम जमात को मैंने जहाँ तक जाना है, ये बहुत पुरानी जमातों में से एक जमात है, बहुत पुरानी। लेकिन इस जमात के बाद बहुत सारी जमातें बनी हैं, तरक्की कर गई हैं, लेकिन इसके ऊपर फ़ज़ल वो नहीं हुआ है, जो दूसरी जमातों पे ये या तो बहुत तरक्की नहीं कर पा रही, नहीं की या अगर तरक्की की भी है तो बहुत स्लो है। तो मुझे मैं पूछता रहा हूँ सारे लोगों से, मुझे इसका कोई मेरा तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। आज मैंने ओढ़नी वालियों के फूल वो किताब मेरे हाथ आई, उसमें मैंने जो खलीफ़ा सानी की तहरीक और बल्लन की वसत का ज़िक्र वो पढ़ा, तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मुझे लगा कि मस्जिद का बनना जो है वो ही इसकी तरक्की का रास्ता, इसी के लिए वो दुआएँ थी खलीफ़ा सानी की बहुत सारी, तो वो पता नहीं शायद यहाँ पे कुछ सुस्ती कहीं पे नहीं हो गई, मुझे नहीं पता। हुज़ूर इसलिए दुआ करें कि मस्जिद अल्लाह ताला बना दे। ये बात मैं उस वक़्त मैं हैम्बर्ग जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, तो अ, ख़त लिखा था, पोस्ट नहीं किया कि आके करूँगा, 3-4 दिन में वापसी थी, तो मैं आके पोस्ट करूँगा तो मैं अ, हैम्बर्ग चला गया। अ, 18 को मैं गया, 19 को सुबह हज़ूर की वफ़ात की खबर मिली और परेशान हो गए सारे। हम भी सारे उस वक़्त सकता ही था जमात पे, परेशानी थी बड़ी। तो फिर 3-4 माह मैं तो छो नहीं प पोस्ट नहीं किया कि
हज़ूर तो रहे नहीं। फिर मुझे ख़्याल आया कि मैंने तो ख़िलाफ़त को लिखा था। मैंने तो क्यों ना मैं मौजूदा हज़ूर को ही ख़त लिख दूँ। वो मैंने वही ख़त मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको एक तरफ फ़ोन को लिखा हुआ था, उसकी दूसरी तरफ बैक पे मैंने मौजूदा हज़ूर को अ अ वो ख़त लिखा। अ, उसके बाद फिर स जमात ने ढूँढना शुरू की। एक मस्जिद एक जगह मरकज़ को भी पसंद आ गई और वो ये जहाँ पे इस वक़्त खदीजा मस्जिद है, उसकी फिर उसको तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे फिर ख़्याल आता है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हमने मिल के और मैं भी उस वक़्त उस ज़मीन को तैयार कर रहा था, मिर्ज़ा साहब की ज़मीन को। तो वो वो उस वक़्त ही वो निशान देखा हमने। तो वो अल्लाह ताला ने फिर वो करते रहे। उस वक़्त उसकी मुखालफत मस्जिद बनने लगी, शुरू हो गई। उसकी उसका ज़िक्र इतना मस्जिद का हुआ क्योंकि खलीफ़ा सानी की दुआएँ थी और उसका ज़िक्र ऐसा अल्लाह ताला ने करना ही था, हुआ कि वो मीडिया कहता है कि किसी मस्जिद का बड़ी-बड़ी कीमती मस्जिदें बनी हैं दुनिया में, इतना ज़िक्र दुनिया की मीडिया में नहीं आया, जितना ज़िक्र इस मस्जिद का अ, मीडिया में आया। तो उसमें ये था कि मसाइल आए, मुखालफत हुई, वो जो मुखालफत थे, वो नाज़ी जिनको कहते थे जर्मनी में, वो खड़े हो गए। उनकी वजह से मुतवज्जो होगी दुनिया सारी और फिर इस वजह से हुकूमत को भी ये था कि हम मस्जिद बनाएँ, नहीं तो बदनामी है हमारी डेमोक्रेसी की, और सारा कुछ। उन्होंने भी फिर कोशिश तेज़ की, इस तरह हमें इजाज़तें मिलती गईं, मुखालफतें होती गईं और उसमें एक वाक़या ये था कि जब संग बुनियाद मैं थोड़ा-सा इख्तिसार से अब चीज़ें बताऊँगा कि वो जब अ, हज़रत अ, खलीफ़तुल मसीह ख़ामस अय्यदुल्लाह ताला बिनसरिही जी आए, उनको वो कहते हैं कि अमीर साहब ने उनको कहा कि अ, बर्लिन के क्योंकि मुखालफत ज़्यादा है जो मस्जिद की, तो संग बुनियाद पे ना जाएँ। अब उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ होंगे, हाँ? तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर ने कहा कि कितना वो क्या करेंगे? क्या कि उन्होंने कहा कि वो मैंने कहा कि नहीं वो सिर्फ़ सब्ज़ी वग़ैरह मार सकते हैं, पत्थर-शत्थर तो मार नहीं सकते। तो कितने फासले से वहाँ तक उनको पुलिस रोक लेगी। चले कोई नहीं, वो मारते हैं मारने दें पत्थर, अ, सब्ज़ी मारने दें। जाके खुदा के घर की बुनियाद रखेंगे। तो वो एक ये था कि जब वो आए, उस वक़्त प्रोटेस्ट बड़ा ज़ोर पे था। बिल्कुल साथ वाले मस्जिद के एक साथ जो प्लॉट था ज़मीन का, उस पे। तो हज़ूर आ गए, लोग अब वो हज़ूर तकरीर कर रहे थे। वो उधर प्रोटेस्ट की आवाज़ें थी, शोर था। जब हज़ूर ने तकरीर शुरू की है, प्रोग्राम शुरू हुआ, उस वक़्त था जब हज़ूर ने तकरीर शुरू की, तो पता नहीं क्या हुआ है, उनकी आपस में लड़ाई हुई या क्या हुआ, वो सारे ही गायब हो गए। आवाज़ ही खत्म हो गई, कोई प्रोटेस्ट नहीं था। सुकून से वो तकरीर हुई, पूरी आराम से। देखें मेरे दादा ने को जब घर से निकाला गया, तो यही कहा गया कि मिर्ज़ा की ज़मीन है, करो। और अब अल्लाह ताला ने आज उनके पोते को ये तौफ़ीक दी कि बर्लिन में ये मस्जिद मेरी सदारत में ये मस्जिद बनी और ये मस्जिद खुदा ताला का नाम यहाँ पे आके जो बुलंद हुआ, वो उस मेरी सदारत में हुआ और मेरे हिस्से में ये अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, मेरे मेरे हिस्से में डाली। मैं बस मैं यहाँ पे इसको बात करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह वस्लज़ा फ़ाक़ साहब, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा दे। आपने अपने बुज़ुर्गों का तारफ़ जो है वो करवाया और उनकी
قبولیت احمدیت کا نہایت ایمان افروز واقعہ القلم کے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ جزاکم اللہ واصل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔